Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Navya and today we are going to talk about a very common topic related to students' life, and that is timetable. Right. So timetable, a very, a common term related to our daily life. We often make a new timetable every second day or every week or every month, but how far we are able to follow that is a question mark, right? टाइम टेबल सब बनाते हैं, आप भी बनाते हो, मैं भी बनाती थी, अभी भी बना लेते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ अस फॉलो दैट्स अ रियल क्वेश्चन. And let me tell you one thing, that this video is not going to be like other normal timetable videos जिसमें कि mostly लोग बताते हैं कि this should be the ideal timetable, that one should wake up at 7 o'clock, then you have your breakfast, then you have your classes, then इतने बजे से इतने बजे तक rest time, then you have your lunch time, then these hours of study, then rest, and blah blah, right? This video is not about that. Why? Because I am not the right person to tell you that at what time you should study, at what time you should sleep. I cannot fix each and every hour of your daily routine, right? Because I don't know what situation you have at your place, what टाइप ऑफ पर्सन यू आर. मे बी यू आर लेट नाइट पर्सन जिसकी पढ़ाई ही रात में होती है ठीक से. मे बी यू आर अ पर्सन जिसको आफ्टरनून में अच्छा पढ़ा जाता है, जिससे मे बी किसी से अर्ली मॉर्निंग अच्छा सा पढ़ा जाता है. सो हाउ कैन अदर फिक्स अ प्रॉपर टाइम टेबल हर एक घंटे का फॉर यू? इट्स नॉट पॉसिबल. Then you must be wondering that what we are going to discuss in this video. So basically we are going to discuss some general points which should be taken into consideration while you are making your timetable. Okay? So it should be, first of all, it should be flexible. It should not be very rigid that you have decided each and every hour of your day. दैट बिकॉज उससे क्या होगा ना, अगर हर एक आर फिक्स कर लिया कि इस घंटे में ये करेंगे, इस घंटे में ये करेंगे, तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ फॉलो नहीं हो पाता है. और अगर एक घंटा भी फॉलो नहीं हो पाता तो आगे वाला सारे आर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और अल्टीमेटली सब कुछ मैसअप होकर हम लोग कुछ फॉलो नहीं करते हैं और अपना अलग ही एक डायरेक्शन में चले जाते हैं. सो दैट शुड नॉट हैपन, राइट? सो लेट अस स्टडी और लेट अस गो इन टू सम पॉइंट्स, सम जनरल पॉइंट्स विच शुड बी देयर इन योर टाइम टेबल or which should be there in your mind while you are framing one flexible timetable for yourselves. ठीक है? All right, so let's start. Number one point is study time. What is an ideal study time? Whether you should study in daytime or in the night time. Now it depends upon person to person again. सम पर्सन हो सकता है उसको दिन में अच्छे से याद होता हो, किसी को सुबह उठ के बहुत बढ़िया याद होता है, किसी को लेट नाइट अच्छी पढ़ाई होती है. डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एट योर प्लेस, राइट? बट स्टिल एज अ स्टूडेंट till your grade 12, when you are a school student, I would suggest your study time should be in day only. Because night में क्या होता है ना, you if you are doing late night studies you will not be able to wake up early in the morning. फिर दिन में ऑनलाइन क्लासेस में सोते रहोगे एंड होल टाइम टेबल और होल दैट डे गेट्स डिस्टर्ब बिकॉज रात को नींद ठीक से नहीं ली. ठीक है? एंड ऑल्सो देयर इज वन बायोलॉजिकल क्लॉक इन आवर बॉडी एज वेल which demands that we should sleep on time and wake up on time. And if we disturb this clock, then the repercussions are that we have to face lots of health problems. So it's better that one should study maximum 1 बजे तक पढ़ लो, 1 बजे के बाद सो जाओ, and you should get up early in the morning. Early in the sense कि 7-8 बजे तक, 7 or 7:30 you should get up. Now your sleeping hours also come in this, that you should at least have a sleep of 7 hours. 7 hours sleep should be there. So make sure that you are having a sleep of good 7 hours, a sound sleep of 7 hours. ठीक है? ऑल राइट. सो ये स्टडी टाइम हो गया, हमें पता चल गया कि एटलीस्ट स्कूल टाइम में तो स्कूल स्टूडेंट्स शुड गो फॉर डे टाइम स्टडीज ओनली. नाइट में मैक्सिमम 12 और 1 तक, 1 o'clock तक स्ट्रेच कर सकते हैं. उसके बाद वी शुड हैव अ स्लीप और फिर सुबह उठ के वी कैन कंटिन्यू विद आवर डे इन अ प्लान्ड मैनर. ठीक है? इफ़ इट कम्स टू कॉलेज स्टूडेंट्स तो ठीक है, कॉलेज में तो पढ़ाई की सारी इक्वेशंस ही चेंज हो जाती हैं.
मोस्टली जब एग्जाम आते हैं तब लोग एकदम से जागते हैं कि ओके पढ़ना है, बट ठीक है, कॉलेज में यू बिकम सो मेच्योर, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है दैट वी कैन मैनेज आवर थिंग्स ऑन आवर ओन. वी डोंट नीड एनी बडी टू वॉच अस, टू मॉनिटर अस. हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती. बट बीइंग अ स्कूल स्टूडेंट वी आर नॉट हैविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर नॉट हैविंग दैट सेल्फ कंट्रोल, सो अ मॉनिटरिंग इज नीडेड एंड दैट इज़ पॉसिबल इन डे टाइम ओनली. वन विल कीप अ चेक ऑन यू. रात को सबको हर कोई आप पे वॉच डॉग की तरह नज़र नहीं रख सकता, वेदर यू आर एक्चुअली स्टडिंग या मूवी में लग गए किसी में, या वॉच अपना कुछ फेवरेट शो देखने लगे. सो डे टाइम इज़ प्रेफरेबल. देन स्टडी आवर्स. नाउ कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये भी कोई फिक्स नहीं है. हो सकता है किसी को 5 घंटे ही इनफ हो सकता है किसी को 8 घंटे भी इनफ ना हो. इट डिपेंड्स आप कैसे पढ़ते हो, वॉट इज़ योर स्पीड ऑफ लर्निंग, राइट, वॉट इज़ योर स्पीड ऑफ रीडिंग, कितना आप रिटेन कर पाते हो, कैसे कैसे आपको पढ़ने का तरीका है, दैट डिपेंड्स. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कौन से सब्जेक्ट्स को कब पढ़ रहे हो, है ना. सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी डिपेंड करता है. इफ से यू आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स, सो मैथ्स में तो डेली यू नीड प्रैक्टिस ऑफ 1 to 1.5 आवर या 2 आवर की प्रैक्टिस डेली चाहिए. साइंस में भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस चाहिए. थियोरेटिकल सब्जेक्ट, इफ आई से अबाउट इंग्लिश, सो इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट जिसको डेली हाफ एन आवर भी दे दोगे मोर देन इनफ है. बट आई एम सेइंग डेली हाफ एन आवर दोगे इनफ, राइट. थियोरेटिकल सब्जेक्ट से सोशल साइंस, उसको भी डेली 40-45 मिनट्स भी अगर डेली पढ़ते हैं, ट्रस्ट मी इट्स इनफ, और मैक्सिमम 1 आवर, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट मेक श्योर दैट योर वन सिटिंग शुड बी ऑफ एटलीस्ट 1 आवर. ऐसा नहीं है कि 25 मिनट के लिए बैठे पढ़ने के लिए एंड देन व्हाट हैपन, यू आर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 25 मिनट्स. ब्रेक ले लिया 25 मिनट के लिए, फिर अगेन यू आर सिटिंग फॉर अनदर 30 मिनट्स एंड अगेन 30 मिनट पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, अगेन 30 मिनट्स का ब्रेक. तो जितना पढ़ रहे हो उतना ही ब्रेक. दिस इज़ नॉट द गुड वे. एटलीस्ट वन सिटिंग शुड बी ऑफ 1 आवर. एक बार जब पढ़ने बैठ रहे हो तो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए बैठो, और 2 आवर्स, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. अगेन किसकी कितनी सिटिंग कैपेसिटी है. कोई एक स्ट्रेच में 3-4 घंटे पढ़ लेते, लाइक आई एम अ पर्सन जो एक स्ट्रेच में आई कैन स्टडी फॉर 3-4-5 आवर्स इन अ स्ट्रेच, आई कैन. बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, किसकी कितनी सिटिंग कैपेसिटी है एट अ टाइम. किसको बीच में ब्रेक्स की ज़रूरत है वो ब्रेक ले. हैव अ सिप ऑफ वाटर व्हेन यू आर रीडिंग, तो उससे थोड़ा सा अच्छा जो भी हम पढ़ रहे होते हैं ना वो सब माइंड में डाइजेस्ट होता रहता है अच्छे से. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड आइडियली आई शुड से फॉर अ स्टूडेंट, सेल्फ स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए. 5 to 6 hours शुड बी देयर. मैं 8-10 घंटे नहीं कहूँगी, 5 to 6 hours आर नीडेड एज पर योर सब्जेक्ट्स, बिकॉज 5 सब्जेक्ट्स तो होते ही है ना. तो हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा भी दोगे, या फिर मैथ्स और साइंस को से 1.5 आवर दे दिया और बाकी को 40 मिनट्स 30 मिनट्स दे दिया. सो आइडियली यू नीड 5 to 6 hours ऑफ सेल्फ स्टडी. इट डज नॉट इंक्लूड योर ट्यूशंस, इट डज नॉट इंक्लूड योर ऑनलाइन क्लासेस एंड व्हाटसोएवर. इट इज सेल्फ स्टडी टाइम ऑफ 5 to 6 hours, extremely needed if you want to be a good scorer or a high achiever. All right. Then another important thing comes in our list is to-do list. Make it a habit that every day when you wake up in the morning, first of all, उठे सुबह उठ के try to have some sunlight. It gives you a positive vibe. जाके बैठे धूप में एक टेबल चेयर पे या एक टेबल पे बैठे, एंड व्हाट यू आर डूइंग, चेयर पे बैठे नॉट टेबल पे, एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग योर टू डू लिस्ट कि आज मैंने क्या करना है. मेक अ लिस्ट. एक ऐसे पेन पेपर लो और लिख लो, नंबर 1 आज हिंदी में ये वाला चैप्टर पढ़ूंगे, नंबर 2 मैथ्स में ये वाली एक्सरसाइज 5.1 करूँगी, नंबर 3 सोशल साइंस में आज ज्योग्राफी का ये चैप्टर रीड करना है. सो ऐसे करके जस्ट मेक योर टू डू लिस्ट, और एंड में सोने से पहले यू हैव टू चेक इट कि व्हाट वाज योर टू डू, कि क्या करना था, एंड व्हाट इज़ योर रियलिटी, हाउ मच यू हैव अचीव्ड. दिस यू हैव टू डू एवरी डे. If there is some difference, then that difference has to be tackled. कैसे करेंगे उसको, वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा टाइम दो, छुट्टी होती है, स्कूल नहीं होता है. सैटरडे संडे वीकेंड्स पे यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम टू योर स्टडीज. सो ये जो 5 to 6 आ रहा है ये वीक डेज के हैं. वीकेंड्स पे इट शुड गो फॉर 8 hours, बिकॉज जो भी कहीं कुछ रह गया है ना वीक में, उसको का सबका बैकअप यू विल डू ऑन सैटरडे और संडे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टू डू लिस्ट बना लोगे बहुत फ़ायदा मिल जाएगा. यू विल बी एबल टू एनालाइज होल ऑफ योर डे, दैट व्हाट वाज योर प्लान and how much you have achieved. And if the achievement will be the same, it will give you a sense of happiness, a sense of
खुशी हो जाती है, भाई मैंने ये प्लान किया था और यही हो गया, सब कर लिया मैंने। और अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो उसको लिख दो, अच्छा ये रह गया तो इसको मैं या तो कल एक्स्ट्रा इस सब्जेक्ट को दूंगा और इसको कंप्लीट करूंगा, अदरवाइज आई विल डू इट ऑन सैटरडे एंड संडे। तो प्लानिंग शुड बी, एक एक दिन की प्लानिंग तो करो बट साथ में एक पूरा वीक का भी प्लान होना चाहिए, बिकॉज वीकली प्लान्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, हो सकता है नेक्स्ट वीक आपके यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हो, कोई क्लास टेस्ट हो, कोई हाफ ईयरली आ जाएंगे, प्री बोर्ड्स आ जाते हैं, बहुत सारे पेपर होते ही रहते हैं स्कूल में तो, राइट। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। जब से अभी ग्रेड 10 का ऑब्जेक्टिव एवालुएशन जब से आया है, सो इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी इंपॉर्टेंट था और अभी भी, कि हर एक एग्जाम में, हर एक टेस्ट में यू हैव टू स्कोर गुड, बिकॉज सबके मार्क्स आगे एंड में काउंट होते हैं, जैसे कि अभी ग्रेड 10 के हो रहे हैं टू मेक देयर फाइनल लिस्ट। सो आपको पता नहीं, दिस में हैपन विद यू। सो हर एक एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, सो प्लान अकॉर्डिंगली। अगर नेक्स्ट मंथ से पीटीज शुरू हो रहे हैं, यूटीज शुरू हो रहे हैं, सो प्लान अकॉर्डिंगली कि वो सिलेबस जो आपका टू डू लिस्ट है वो ऐसी हो कि नेक्स्ट मंथ तक आप सारा अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको। एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड दिस। यू ऑलरेडी हैव योर मंथली सिलेबस, स्कूल से पहले ही मिल जाते हैं सबको। यू आर द पर्सन हु कैन ईजिली डिसाइड कि मेरे को कितना कैसे करना है, ताकि जब तक मेरा एग्जाम हो तब तक मेरा सारा कंप्लीट पढ़ लिया जाए और रिविजन भी हो जाए। फाइन। देन कम्स द स्लीपिंग टाइम। ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस दैट स्लीपिंग टाइम एक तो 7 घंटे सोना ही है, एंड प्रेफरेबली टाइम से सोना है, बिकॉज बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक लगी हुई है, वो अपना टाइम से सोती है, टाइम से उठती है। बट अगर आप लोग उसके टाइम के अकॉर्डिंग मैच नहीं करोगे, यू विल फेस हेल्थ इश्यूज। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि टाइमली सोया जाए और टाइमली उठा जाए। इफ़ यू विल वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, यू विल फील लेथार्जिक होल ऑफ द डे। दिस हैपन्स। देन सब्जेक्ट मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 सब्जेक्ट हैं, ऐसा नहीं है मैथ्स लेके बैठे, इतना इंटरेस्ट आया कि 3 घंटे से मैथ्स ही पढ़े जा रहे हैं और सोशल साइंस रख दिया साइड में। सोशल साइंस में एक चैप्टर भी नहीं आता, सोशल साइंस में नंबर आए नहीं और मैथ्स में टॉप कर दिया, सोशल साइंस में फेल हो गए। ऐसा भी बहुत बढ़िया नहीं है, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग कि एक सब्जेक्ट में टॉप कर रहे हैं, दूसरे में फेल हो रहे हैं। देन सब्जेक्ट मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट कैसे होगा? टू डू लिस्ट से। जब लिस्ट में लिखोगे ना कि हर एक सब्जेक्ट का नाम लिखोगे, तो उस लिस्ट में पता चल जाएगा अच्छा हर एक सब्जेक्ट को मुझे ऐसे ऐसे टाइम देना है और मुझे डेली 5 से 6 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब किस टाइम पढ़ना है, डिपेंड्स अपॉन यू। 2 घंटे दोपहर में पढ़ लिया, 1 घंटा शाम में पढ़ लिया, 3 घंटे रात में पढ़ लिया, तो 6 घंटे हो जाएंगे, है ना। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं 8 से 2, 8 से 1 ऐसी ही होती हैं। आफ्टर दैट यू हैव सम रेस्ट, लंच वंच करने के बाद रेस्ट कर लिया, 4 बजे उठ गए तो 4 से 6 की सिटिंग ले ली एक, फिर 6 से 7 थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करके 7 से 9 पढ़ने बैठ गए, फिर 9 बजे डिनर वगैरह करके 10 से 12 बैठ गए। इतना बहुत होता है। दिस इज़ अ नॉर्मल टाइम टेबल ऑफ अ स्कूल स्टूडेंट। तो इसको मैं अलग से लिख के दूँ कि इतने बजे से इतने बजे पढ़ो, इतने बजे से इतने बजे पढ़ो, नॉट नीडेड, बिकॉज यू कैन प्लान दिस ऑन योर ओन। सो एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल अपना खुद बना के रखो। Then revision. This is the main thing which will help you to achieve your marks, to achieve good marks, and it will help you to scale up your performance. मेन इसी का ही है। अगर रिविजन ठीक से करते हो 20-25% मार्क्स अपने आप बढ़ जाते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेल नोन फैक्ट दैट क्या चीज़ें हमें याद रहती हैं। इट इज़ वन थिंग, एक्चुअली 2 थिंग्स। एक जो एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ के जाते हैं, दूसरा जो हमने 3-4 बार पढ़ा होता है। दिस इज़ अ थिंग वॉट वी कैन रिकॉल एंड मेमोराइज। 2 ही चीज़ होती है, एक जो एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ते हैं, या एकदम एग्ज़ाम से पहले जो सुबह के टाइम रिविजन हो रहा होता है ना हमारा जल्दी जल्दी, या तो वो चीज़ याद रहती है या फिर वो चीज़ याद रहती है जो आपने 3-4 बार ही पढ़ ली है, मतलब आपने रिविजन किया हुआ है। तो बिना रिविजन के आप कितना ही एक बार में बढ़िया पढ़ लो, रिवाइज नहीं करोगे, कुछ टाइम बाद वो सब आपका गायब हो जाता है। सो रिविजन इज़ द की फॉर योर सक्सेस। रिविजन करने के लिए अ गुड थिंग इज़ फ्लैश कार्ड्स बनाना सीखो। जब भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, एक दिस इज़ योर बुक, ठीक है, एक चैप्टर पढ़ा पूरा और साथ के साथ एक पेन पेपर लेके शॉर्ट नोट बना, मतलब अगर सपोज 10 पेज का चैप्टर है या 15 पेज का चैप्टर है, उसके एक ही पेज में नोट्स बना लो, कीवर्ड लिख लिए, एक या मैक्सिमम 2 पेज में, और उस पेज पे अपने नोट्स बना के शॉर्ट में अपने लिए नोट्स बनाने, दूसरे को समझ आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गंदी शंदी राइटिंग में कैसे ही कर लो, बस एक शॉर्ट नोट से बना दो, क्रिस्पी से नोट्स जिसमें कीवर्ड्स हो, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हो, फॉर्मूलाज हो और इक्वेशंस हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बना ली और इसी चैप्टर के बीच में उस पेज को रख दिया। दिस इज़ योर फ्लैश कार्ड। जब रिविजन करना होगा ना एग्जाम से पहले, तो बस एक ही अपना ये वाला पन्ना निकाला
और झट से पढ़ लिया 5 मिनट में एंड यू आर डन विद द होल चैप्टर। ठीक है, सो दीज फ्लैश कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत हेल्प करते हैं, एग्जाम से पहले मज़ा आ जाता है सही में। देन इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो। यू शुड ऑलवेज स्टडी इन आइसोलेशन। जहाँ पढ़ रहे हो आप डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ योर स्टडी, प्रेफरेबली अ टेबल एंड ऑन अ टेबल एंड अ चेयर। बेड पे पढ़ के बैठ के बहुत लोग पढ़ते हैं, बट बेड पे पढ़ के पढ़ाई हो जाती है, बट नींद भी उससे अच्छी आती है, राइट। कब वो पढ़ाई होता है ना कि व्हेन वी आर सिटिंग ऑन द बेड, मोस्टली व्हाट वी डू, हम लोग टेक लगा लेते हैं साइड में, पीछे पिलो लगा के। वो टेक कब हाफ सिटिंग पोस्चर में बदल जाती है और हाफ सिटिंग पोस्चर कब पूरा ही लेटने में बदल जाता है, पता नहीं चलता और नींद आ जाती है बहुत बढ़िया वाली। सो प्रेफरेबली वी शुड ऑलवेज स्टडी वाइल सिटिंग ऑन अ चेयर एंड वी शुड हैव अ टेबल एंड इन आइसोलेशन। ऐसा नहीं चैं पैपा हो रही है, किसी की 2 बात उधर से सुनाई दे रही है, 4 बात उधर से सुनाई दे रही है और उसी में दिमाग जा रहा है और वैसे हम पढ़ रहे हैं। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आइसोलेशन में अकेले बैठ के पढ़ो, फिक्स टाइम हो आपका पढ़ने का, फिक्स प्लेस होनी चाहिए कि यहीं पे बैठ के पढ़ते हैं। एक ग्लास पानी का साथ में रखो, एक एक सिप लेते रहो पानी की और पढ़ते रहो, चीज़ें बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती हैं माइंड में। एंड देन वन थिंग इज लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, प्रायोरिटाइज योर थिंग्स। चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखो। ज़रूरी नहीं है आपने जो अपना प्लान बनाया है, वीकली प्लान या मंथली प्लान, उसमें चेंजेस होने करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है एक सब्जेक्ट को जिसको आप डेली 1 आवर दे रहे थे, बट आपको पता चला कि ये पर्टिकुलर चैप्टर जो मेरे एग्जाम में आ रहा है, मैं इस चैप्टर में थोड़ा सा वीक हूँ, सो मे बी उस सब्जेक्ट को आपको 2 आवर्स देने हों। और एक दूसरा सब्जेक्ट है जिसका चैप्टर जो आपको बहुत ईजी चैप्टर आ रहा है इस बार सिलेबस में, वो आपको आता है, तो मे बी उसको 1 आवर की जगह 30 मिनट्स का टाइम देने की ज़रूरत हो। सो इट इज़ यू हु विल डिसाइड। सो प्रायोरिटाइज योर थिंग कि कौन सा सब्जेक्ट कब और कितने घंटे पढ़ना है। वॉट इज़ द प्रायोरिटी फॉर यू, ओनली यू कैन डिसाइड। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या लीस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप ही डिसाइड कर सकते हो। यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू दैट। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। सो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए एक रफ फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बना सकते हो। एंड आई थिंक वन शुड मेक अ टाइम टेबल, एक रफ टाइम टेबल होना चाहिए, या फिर टू डू लिस्ट तो ज़रूर होनी चाहिए। टू डू लिस्ट कह सकते हैं टाइम टेबल का एक छोटू सा पार्ट होता है टू डू लिस्ट, वो तो बनानी ही चाहिए। आधे बच्चे तो क्या करते हैं, टाइम टेबल ही नहीं बनाते हैं। वाई? बिकॉज दे आर स्कैर्ड। पता है क्योंकि टाइम टेबल बनाएंगे फॉलो होगा नहीं, सो वी विल गेट टू नो अबाउट आवर रियलिटी, दैट व्हाट इज़ द मेन फॉल्ट इन अस, we will get to know about this. दूसरी चीज़, वो टाइम टेबल बना लिया, and if parents come to know about that time table and they see that you are not following it, तो और बेइज्जती हो जाती है कि अपनी बेइज्जती अपने तक ही थी तो ठीक है, अब तो पेरेंट्स को भी पता चल गया कि बनाया क्या और कितना फॉलो हो रहा है। तो इस डर से many of you are not making the time table, right? But it should not be like this. One should make एक रफ सा टाइम टेबल. It helps you to, study in a disciplined manner, in a sincere manner, and that is very important in in a student's life. बहुत important है sincerity, consistency and discipline. If these 3 things are there, तो और क्या चाहिए, बस थोड़ा सा दिमाग तो होता ही है सब में और बस पढ़ाई करो. So that's all. These are some points which I have discussed. I hope you like this video, and if you will try to implement them, especially the to-do list is the main key point here. And if you will try to implement it, then definitely you will see a scaling up in your marks. So let us see how many of you are actually मेकिंग एफर्ट फॉर दिस, बिकॉज वीडियो तो बहुत लोग देखेंगे बट कितने लोग बनाएंगे, दैट इज़ अ क्वेश्चन. जो बनाते हैं वही टॉपर्स बनते हैं. टॉपर कोई ऑलरेडी ऐसा नहीं ऊपर से आते हैं टॉपर्स बने बनाए, ऐसा नहीं है. टॉपर्स आर नॉट इनबॉर्न. वो क्या होता है, जो पढ़ते हैं, अब जो एक्चुअली सिंसेयर होते हैं वो टॉपर्स बन जाते हैं. जिनको गेड़ी मारनी है और मज़े लेने हैं और बस टाइम पास करना है, वो एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाते हैं या बिलो एवरेज हो जाते हैं. सो इट इज़ यू हु विल डिसाइड कि यू हैव टू मेक एफर्ट. जब तक एक्शन नहीं लोगे नथिंग विल हैपन. पत्ता भी नहीं हिलना बिना एक्शन लिए. दिमाग में सोचते रहो, you can have a dream of n number of things, but nothing will happen until unless you are actually taking an action for this. So action is needed for every dream, for every plan, for every process. Alright, so on this note, I am signing off. Thank you so much. If you like this video, please share it with your friends. Alright, take care. Bye bye.